Ignited Minds Tutorials, a renowned online learning platform, has recently uploaded an informative and educational video on the topic of applied history for Class 10 Maharashtra State Board students. This video aims to provide a comprehensive understanding of the subject, enabling students to grasp historical concepts with ease. Applied history, a vital component of the Maharashtra State Board curriculum, explores the practical applications of historical knowledge in various fields. By linking the past with the present, students can gain valuable insights into how historical events continue to shape our society. The video delves into key topics like the significance of studying history, understanding historical sources, and analyzing different perspectives. It also highlights the importance of critical thinking and encourages students to engage in thought-provoking discussions. With its engaging content and visually appealing presentation, this video is an exceptional resource for students preparing for their Class 10 Maharashtra State Board examinations. IT provides an in-depth understanding of the subject, making it easier for students to comprehend complex historical concepts. Ignited Minds Tutorials remains committed to providing quality education through their online platform. Their applied history video is a testament to their dedication in supporting students' academic growth and helping them excel in their studies. By accessing this video, students can broaden their knowledge and develop a deep appreciation for the role history plays in shaping our present and future. IT serves as a valuable tool for learning and prepares students for the challenges they may face in their academic journey and beyond. ओके बच्चा बॉडी अप्लाइड हिस्ट्री देखेंगे हम यहाँ पे, मतलब हिस्ट्री का एप्लीकेशन क्या क्या है. ठीक है. ओके, सो what we are going to cover, what is applied history and research in various fields, applied history and our present, management of cultural and natural heritage and affiliated professional field. So what is applied history? Applied history, that is public history, field of study concerned with application of history for the benefit of people in the contemporary and future times. देखो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री पढ़ने के बाद अगर मेरा कोई करियर ना हो, या हिस्ट्री पढ़ने के बाद अगर मेरा कोई सोर्स ऑफ इनकम जनरेट ना हो, तो उसका कोई फायदा नहीं होता है ना. मतलब फायदा नहीं होगा. हमको हिस्ट्री पढ़ने में मजा आ रहा है, लेकिन इज देयर अ करियर विच इज ओरिएंटेड अराउंड हिस्ट्री? क्या मुझे हिस्ट्री के स्टडी से कोई करियर या कोई जॉब मिलने वाला है, या मैं क्या इससे पैसे बना सकता हूं? ठीक है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, कि किसी स्टडी को हम तब तक कर सकते हैं या परस्यू कर सकते हैं जब उसमें से हमको कोई इकोनॉमिक फायदा मिले. ठीक है. सो अप्लाइड हिस्ट्री और पब्लिक हिस्ट्री इज बेसिकली द फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री for the benefit of people, अभी के और फ्यूचर के टाइम में लोगों को बेनिफिट हो. ठीक है, इसी को अपन बोलेंगे भाई साहब अप्लाइड हिस्ट्री और पब्लिक हिस्ट्री. हिस्ट्री प्रोवाइड्स गाइडेंस इन फाइंडिंग सॉल्यूशन टू कंटेम्परेरी सोशल इश्यूज. देखो कोई सोशल इशू है, कोई कम्युनिटी में फसाद है, कोई झगड़ा झांसा है. ठीक है, लेट्स से, तो अभी कंटेम्परेरी मतलब अभी के सोसाइटी में अगर कोई झगड़ा झांसा है या कोई डिस्प्यूट है, ठीक है, या कोई इश्यू है जो रिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम पीछे जाते हैं. ठीक है, और पीछे जाकर इसका सोल्यूशन देखते हैं कि भाई साहब उस टाइम पे भी ये झगड़ा हुआ था, उस टाइम पे लोगों ने कैसे इसको सॉल्व किया रहेगा. ठीक है. सो हिस्ट्री प्रोवाइड्स गाइडेंस इन फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू कंटेम्परेरी सोशल इश्यूज. जैसे हिंदुओं का एक किताब है, मतलब ग्रंथ है जिसको हम गीता बोलते हैं. गीता कब लिखी गई थी? जब महाभारत युद्ध हो रहा था. ठीक है. सो गीता में जो चीजें हैं, क्या वो आज भी हमारे लाइफ में एप्लीकेबल हैं? इज इट अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री? बट कैन यू यूज दोज थिंग्स टू सॉल्व टुडेज प्रॉब्लम्स? यस. ठीक है. तो इसी तरह से भाई साहब जो हमारे पहले के जो भी काम हुए हैं, ठीक है, सोशल इश्यूज को रिजॉल्व करते हुए, क्या वो आज भी एप्लीकेबल होंगे? तो ये एक तरीका हो गया हिस्ट्री को अप्लाई करने का. हिस्ट्री को हम कैसे अप्लाई करते हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ठीक है. So history provides guidance in finding solutions to contemporary social issues. आज के हालात में जो आपके सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उनका समाधान हम हिस्ट्री में पा सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन क्लैश के जो रीजंस हैं वो चेंज नहीं हुए हैं. ठीक है. जाति को लेकर, रिलीजन को लेकर, ये सब पहले से होता हुआ आ रहा है. तो उस टाइम पे जो फसाद हुआ था या उस टाइम पे जो झगड़ा झांसा हुआ था, उसको हमने कैसे सॉल्व किया था, अगर उसकी नॉलेज हमको हो तो उसको अप्लाई करके हम आज भी इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. एंड इनकॉर्पोरेट देम इन द सोशल प्लानिंग. ओके.
पब्लिक हिस्ट्री कनेक्ट्स पीपल टू हिस्ट्री, लोगों को हिस्ट्री के साथ जोड़ता है। इससे फायदा क्या है? वाई डू वी नीड टू कनेक्ट टू हिस्ट्री? क्यों हिस्ट्री के साथ जुड़ना है? आपका कल्चर, आपका रूट, आपका स्वभाव, आपका रहन सहन, ये सब आपकी हिस्ट्री से जुड़ा है। आपको क्या लगता है जो आप राइस दाल चावल, जो एक सिंपल सा चीज़ है जो आप रोज खाते होंगे, क्या वो आपकी हिस्ट्री से नहीं जुड़ा है? बिल्कुल जुड़ा है भाई साहब। ठीक है, आपका रहना, आपका लोगों से व्यवहार, आपके माता पिता के प्रति आपका व्यवहार, ये सारी चीज़ें हिस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लोग खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि वहाँ सब हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, वो उनके हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, उनके कल्चर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली कनेक्टेड, पीपल कनेक्टेड टू हिस्ट्री। सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी विच इज लोकेटेड इन बैंगलोर कर्नाटका हैज सेंटर फॉर पब्लिक हिस्ट्री। ठीक है, फिलॉसफी, तो पहली बात हम करते हैं भाई साहब फिलॉसफी। ठीक है, फिलॉसफी होता क्या है? व्हाट इज फिलॉसफी? लाइफ को जीने का तरीका। ठीक है, लोगों के अलग अलग नजरिए हैं, रिलीजन के माध्यम से हो या खुद के एक्सपीरियंस के माध्यम से हो, लाइफ को जीने के तरीके होते हैं लोगों के अलग अलग। ठीक है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की जिंदगी जीते हैं। ठीक है, फिलॉसफी बेसिकली हिस्ट्री नहीं है, फिलॉसफी इज नॉट हिस्ट्री। आइडियोलॉजीज मतलब समझते हैं केंद्रित। ठीक है, आपका केंद्र क्या है? ठीक है, जैसे आपने ठान लिया है कि मैं चोरी चकारी नहीं करूंगा, झोल झपाटा नहीं करूंगा, ऐसा आपका आइडियोलॉजी है। ठीक है, सो ये आपका लाइफ किस आइडियोलॉजी पे सेंटर्ड है, दैट इज कॉल्ड फिलॉसफी। तो लोगों का अलग अलग फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस होता है, अलग अलग ट्रेडिशंस मानते हैं लोग। ठीक है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन, द इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस गिव राइज टू दोज आइडियोलॉजीज एंड देयर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री प्रूव्स यूजफुल। तो एक जैसे समझो भाई साहब, हमारा जो इंडिया में हम फैमिलीज कैसे रहते हैं? ठीक है, हम फैमिलीज एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी रहते हैं, मम्मी पापा के साथ रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में अरे ये क्या, मम्मी पापा के साथ भी लोग रहते हैं, ऐसा कल्चर नहीं है। ठीक है, उनकी फिलॉसफी अलग है, इसीलिए उनका कल्चर अलग है। ठीक है, देयर कल्चर इज डिफरेंट। इनफैक्ट जापान की हिस्ट्री में एक टाइम पे ऐसा हुआ था कि वहाँ पे बहुत बड़ा फेमाइन हुआ था। फेमाइन मतलब सूखा पड़ा था। ठीक है, तो लोगों को खाने को नहीं था। वहाँ पे एक बहुत बेकार सा कल्चर स्टार्ट हुआ था कि जो बूढ़े हो गए हैं, ठीक है, जो अभी काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इनको एक दूर दराज के पहाड़ पे छोड़ कर आओ। ठीक है, अपने माता पिता को ही लोग छोड़ने लगे ऐसे जगहों पे। ठीक है, ये उनकी हिस्ट्री है भाई साहब। ठीक है, तो ये आइडियोलॉजी चली वहाँ पे, और बहुत मतलब क्योंकि खाने को नहीं है तो इनको हम क्या खिलाएं, तो ऐसा चलता रहा। एक कहानी है कि मतलब कोई बेटा था जो अपनी माँ को छोड़ने गया। ठीक है, कंधे पे लेकर गया और वहाँ पे छोड़ कर आया, लेकिन उसकी माँ ने रास्ते में ऐसे लीव्स छिड़कर दे, लीव्स ऐसे रख दिए थे। ठीक है, मतलब जैसे जैसे वो लेते ऊपर चढ़ता जा रहा था, ताकि उसका बेटा जब नीचे उतरे तो पथभ्रष्ट ना हो जाए, मतलब उन लीव्स को फॉलो करते हुए स्ट्रेट रोड से नीचे उतर पाए। तो मतलब जिस माँ को वो छोड़ने जा रहा है मरने के लिए, ठीक है, उस माँ ने उसके बारे में ये सोचा, तो वो फिर अपनी माँ को वापस ले आया। ये फेमस हुआ था काफ़ी। ये जापान में लोगों ने हिस्ट्री को डिलीट कर दिया। ठीक है, उनकी हिस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं था जिस पे वो गर्व महसूस कर पाए, इसीलिए वहाँ पे हिस्ट्री की स्टडी को ही ख़त्म कर दिया था। अब नया कल्चर प्रोड्यूस हुआ है, अभी नई हिस्ट्री उनका निर्माण हुआ है। सो दैट वाज हाउ इट इज़। ठीक है, कभी कभी हमारा हिस्ट्री इतना शर्मनाक रहा है कि हम उसको ना ही याद करें तो अच्छा है, ऐसा भी होता है। हिस्ट्री में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी होते हैं जिनको हम अगर ना याद करें तो ही अच्छा है। ठीक है, तो हिस्ट्री आपकी कैसी है, ये आपका फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन जो है, आप जिस तरीके की जीवन आज जी रहे हैं, मतलब जीवन जीने का मतलब क्या है, आपका व्यवहार, आपका खाना पीना, आपका रहना सहना, आपका अपने बड़ों के प्रति जो आपका रोज का व्यवहार है, ये सारा हिस्ट्री से कनेक्टेड है। ये हमको शायद समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये हमारा सारा कुछ हिस्ट्री से कनेक्टेड है। हम जो इंडिया में ट्रेडिशनली राइस या रोटी खाते हैं, ये भी हमारे हिस्ट्री से कनेक्टेड है। ठीक है, क्योंकि हमारे पूर्वज ऐसे ही खाना खाते आए हैं, हम भी खा रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज कनेक्टेड टू हिस्ट्री। और खाना पीना का तो छोड़ दो, ये फिलॉसफी जो है, मतलब हमारा सेंट्रल आइडिया क्या है कि हम फैमिली को लेकर चलते हैं। ठीक है, दिस इज अ सेंट्रल आइडिया, ये हमारी सेंट्रल फिलॉसफी है। ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, ओके। Philosophy uses language as a medium of expression. It is important to have the knowledge of history of language to understand the philosophical expression.
ठीक है। तो लैंग्वेज भाई साहब, कोई भी सब्जेक्ट आपका विदाउट लैंग्वेज एक्सप्रेस हो सकता है क्या? नहीं। साइंस हो जाए, फिलोसफी हो जाए, आर्ट हो जाए, ट्रेडिशन हो जाए, एवरीथिंग वुड लीड अ लैंग्वेज एंड हिस्ट्री प्रोवाइड्स दैट लैंग्वेज, ठीक है। तो फिलोसफी में हमने देखा हिस्ट्री का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइंस, ठीक है। जैसे आप देखते हो कि समझ लो स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप सबने पढ़ा है ना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पहले आया डाल्टन भाई साहब, फिर थॉमसन का पुडिंग मॉडल आया, फिर भाई साहब रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हुआ, आपने ये सब पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आप देखोगे हर एक साइंटिफिक डिस्कवरी में बहुत सारी कड़ियां जुड़ी होती हैं, ठीक है। और इन कड़ियों को समझना जरूरी है, तभी जाकर हम एक्चुअल साइंटिफिक डेवलपमेंट को समझ पाएंगे। तो साइंस, क्या साइंस भी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है? तो आंसर इज यस, ठीक है। आज जो हम बोल रहे हैं कि हम हम बानर प्रजाति से उभरे हैं, वी आर बेसिकली डिसेंडेंट्स ऑफ एप फैमिली। हम ये जो बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं? साइंस ने ये प्रूव किया है ना, साइंस ने ये प्रूव किया है। सो हिस्ट्री भाई साहब साइंस से भी कनेक्टेड है। तो ये हिस्ट्री और साइंस का ही तो कनेक्शन है। हिस्ट्री क्या करती है? पुरातत्व चीजों को इकट्ठा करती है और उसकी स्टडी करती है। हमने भी तो यही किया, ठीक है। मतलब जो लोग ने साइंस को समझा, उन लोगों ने ये हड्डियों को इकट्ठा किया, उन लोगों ने भाई साहब डीएनए को इकट्ठा किया, और तब जाके ये फ्रेमवर्क सेटअप किया कि भाई साहब एक टाइम पे हम ऐसे दिखते थे, ऐसे खाना खाते थे, ये हमारे हड्डियों का ढांचा है, ये हमारा शरीर का ढांचा है, ठीक है। सो ये सारा जो हमने हमारे पास कोई कैमरा तो था नहीं उस टाइम पे जो हमने रिकॉर्ड किया हो, लेकिन ये सारा जो परिकल्पित चीज है वो हमारा किस ट्रेडिशन पे? हिस्ट्री के ट्रेडिशन पे ही तो है। हिस्ट्री जैसे भाई साहब पुरातत्व चीजों को इकट्ठा करके एक कंक्लूजन पे आती है कि इस टाइम पे ये राजा हुआ करते थे, इनका ये कॉइन चलता था, ये इनकी ये समस्याएं थी, और इस तरह से राज्य कार्य चलता था। इसी तरह से हम भाई साहब साइंस को भी हिस्ट्री से कनेक्ट करते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज, कैसे साइंटिफिक डिस्कवरीज एक के बाद एक होते गए। डाल्टन का एटॉमिक मॉडल पहले आया, उसके बाद भाई साहब आपका आया थॉमसन का, उसके बाद आया रदरफोर्ड का। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, ऐसा नहीं कि पहले रदरफोर्ड का आ गया, है ना। ओके, इन्वेंशंस एंड थियरीज, इट इज एसेंशियल टू नो द हिस्ट्री ऑफ साइंस। तो इन्वेंशंस या थियरीज जो हैं, जो भी हमारे, जैसे आपका पहले आया इलेक्ट्रिक बल्ब, आज आप यूज कर रहे हैं एलईडी बल्ब, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब के डिसएडवांटेजेस को जब आप समझ पाए तो आपने भाई साहब एलईडी बल्ब को इन्वेंट किया, ठीक है। टू नो द हिस्ट्री ऑफ साइंस, history tells, let's once understand the cause effect chain that led to those discoveries and inventions and facilitates more such discoveries, ठीक है। तो हिस्ट्री से हम समझते क्या है भाई साहब कि क्या, देखिए अगर डाल्टन की थियरी सही होती तो आज से 2 साल पहले वो दी गई है, आज भी वो सही होती, लेकिन उसकी डिमेरिट्स थे। जैसे आपने देखा भाई साहब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जस्ट आपने किया है, उसमें भाई साहब पहले आया डोबेनियस टाइड्स, फिर आया भाई साहब आपका न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, फिर आया आपका मेंडली पीरियोडिक टेबल, फिर आया आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच वाज डिजाइन्ड बाय मोजले। सो इन सबके डिमेरिट्स थे। इन डिमेरिट्स को ही जब हम कवर करते गए तब हम एक्चुअलिटी के क्लोज पहुंचते गए, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है, देखो cause or effect chain that led to those discoveries and inventions and facilitates more such discoveries, और ऐसे डिस्कवरीज फिर से हो, ठीक है, हम जुड़े रहें इस चीजों से। तो एक एक्सपेरिमेंट या एक डिस्कवरी की जो खामियां होती हैं उनको जब हम ठीक से सॉल्व करते हैं तो हमको एक और इन्वेंशन या डिस्कवरी मिलती है। इसकी खामियां या इसके जो भाई साहब डिसएडवांटेजेस होते हैं, इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो तीसरा डिस्कवरी होता है। इस तरह से डिस्कवरीज होते हैं। तो ये सारी कड़ियां जो हैं हिस्ट्री में लिंक्ड है, ठीक है, दे आर ऑल लिंक्ड टुगेदर। टेक्नोलॉजी में क्या हिस्ट्री का स्टडी है भाई साहब? द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द चेंजेस एंड देयर कॉजेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। भाई साहब एक टाइम पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऐसा होता था कि हमारे इंडिया में बहुतों बार फूड क्राइसिस हुआ है, ठीक है। बंगाल में एक फेमाइन हुआ था जिसमें करीब 13 लाख लोग मारे गए थे, ठीक है, 5 वर्षों में, भूख के मारे, भूखमरी से, ठीक है, अनाज नहीं था, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ इंडिया बीइंग प्राइमरली एन एग्रीकल्चरल कंट्री वी फेस्ड दिस सिचुएशन, ठीक है। तो हमारे ऐसा नहीं है कि भाई साहब जो हम एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर होता है, तो एग्रीकल्चर में क्या क्या टेक्नोलॉजी हम ला सकते हैं। आज हम 135 करोड़ के हैं, उस टाइम पे हम 50 करोड़ के भी नहीं थे, लेकिन 50 करोड़ में 13 लाख लोग मर गए, ठीक है, आपकी भुखमरी से, ठीक है। हम उनके लिए अनाज नहीं जुटा पाए। तो ज़रूर से हमारे अनाज को प्रोड्यूस करने में कुछ खामियां थी जिनको हमने रेक्टिफाई किया। आज हम 135 करोड़ के अनाज को कैसे जुटा पा रहे हैं? क्या आज सूखा नहीं पड़ रहा है? क्या आज बारिश नहीं हो रही है? क्या आज बाढ़ नहीं हो रहा है? हाउ आर वी एबल टू मैनेज नाउ, ठीक है। वी हैव बीन एबल टू डिसॉल्व द फूड क्राइसिस बिकॉज ऑफ
एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजिकली हमने भाई साहब ऐसे सीड्स लाए हैं जो वेदर रेजिस्टेंट हो, ठीक है, शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ हो, तो हमने आज की तारीख में अपने फूड क्राइसिस को बचाया है, ठीक है। सो द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द चेंजेस एंड देयर कॉजेज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कमोडिटी प्रोडक्शन, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, इन सब से हमने भाई साहब अपने आप को बचाया हुआ है, ठीक है। History of technology helps us understand the development of mechanization and the mutual dependence between science and technology, ठीक है। तो किस तरह से भाई साहब मशीन्स आज की तारीख में भाई साहब आपको बड़े बड़े खेतों को कल्टीवेट करने के लिए यू हैव ट्रैक्टर्स एंड हैवी मशीन्स, यू डू नॉट नीड दैट मच ऑफ लेबर सप्लाई, ठीक है। मैकेनाइजेशन कैसे मशीन्स डेवलप हुए एंड द म्यूचुअल डिपेंडेंस बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या डिपेंडेंस है। साइंस मतलब डिस्कवरीज हो रही हैं, ठीक है, इन्वेंशंस, इनको हम टेक्नोलॉजी में कैसे अप्लाई करके बेनिफिट ला रहे हैं, वो होता है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ओके, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में भाई साहब हिस्ट्री का क्या रोल रहा है, देखो, फील्ड ऑफ म्यूचुअल सोशल ट्रांजिशंस एंड कल्चरल इंटरेक्शंस एक्सपैंड्स विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड। जैसे जैसे आपका भाई साहब इंडस्ट्री और ट्रेड बढ़ता जाता है एज एंड व्हेन, तो आपके सोशल इंटरेक्शंस भी बढ़ते जाते हैं, है ना। इंडस्ट्री क्या होता है, इंडस्ट्री मतलब होता है एक पर्टिकुलर चीज का मास प्रोडक्शन, ठीक है। मैं एक जूता अपने हाथ से बना रहा हूं, शायद 10 दिन में एक जूता बन जाए, लेकिन वही चीज अगर मैं इंडस्ट्री में बनाऊं तो 50 जूते रोज के बन सकते हैं। अभी ये 50 जूते तो बन गए, लेकिन इनको बेचेंगे किसको, ठीक है। तो बेचने के लिए भाई साहब आपको निकलना पड़ेगा मार्केटिंग के लिए, ठीक है। जब आप ऐसा बेचने जाएंगे तो इंटरैक्शंस बढ़ेंगे, लोगों के साथ आपके इंटरैक्शंस बढ़ेंगे, ठीक है। तो फील्ड ऑफ म्यूचुअल सोशल ट्रांजैक्शंस एंड कल्चरल इंटरैक्शंस, तब आप एक जगह पे नहीं रहेंगे। अभी आज आपने 50 जूते प्रोड्यूस किए, मंथ एंड तक आपके पास भाई साहब 5000 जूते हो गए। क्या 5000 जूते अकेले कामोटे में आप बेच पाएंगे? नहीं। देन यू विल हैव टू क्रॉस Kamote, then you will have to cross Navi Mumbai, then maybe one day you have to cross Maharashtra as well, maybe someday you will be able to cross India as well. आपका जिस तरह से धंधा बढ़ता जाएगा, आपके लोगों के साथ इंटरैक्शंस भी बढ़ते जाएंगे ताकि ये आपका ग्रोथ हो। तो जैसे जैसे इंडस्ट्री और ट्रेड का ग्रोथ होता है वैसे वैसे हमारे, तो हम देखते हैं कि बहुत पुरातन काल से हमारे यहाँ पे लोग प्राइमरली किसके लिए आते थे, स्पाइसेस के लिए आते थे। Indian subcontinent and Asia was famous for spices, and people from far off places in Europe and China used to come here for spices, ठीक है। तो ये हमको ट्रेड एंड कॉमर्स में दिखता है। The nature of market and commerce changes continuously. Accordingly, changes are also seen in the nature of human relationships and social organizations. तो काफी सारा चेंजेस हमको दिखता है। देखो आज की तारीख में या आज से समझ लो 100 साल पहले लोगों के बीच में काफी सारा नॉन कोऑपरेशन था, हमने देखा वर्ल्ड वॉर से गुजरे हम, ठीक है। आज इंडिया क्या सारे कंट्रीज ने ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। ग्लोबलाइजेशन मतलब आपके पास जो ज्यादा में है वो आप दूसरी कंट्री को दे रहे हो, और दूसरे कंट्री के पास जो ज्यादा में वो आप ले रहे हो, तो इंटरडिपेंडेंस बढ़ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर भाई साहब मेरा और ऋषभ का एकदम क्लैश है, ठीक है, सो मतलब तलवार निकाल ले हम एक दूसरे को देखे तो, ठीक है। लेकिन अगर समझ लो मैंने कोई दुकान खोला और ऋषभ मेरा क्लाइंट बन गया, so will I fight with him now or will he fight with me now? Let's say मैंने एक हार्डवेयर का दुकान खोला और ऋषभ इज लेट्स से एक बिल्डर है, वो बिल्डिंग्स बनाता है, ठीक है। तो will we both fight with each other because we are now gaining profit from each other? वो भी मेरे से प्रॉफिट कमा रहा है और मैं भी उससे प्रॉफिट कमा रहा हूँ, तो क्यों ही मैं पंगा लूँ उससे और वो भी मेरे से क्यों पंगा ले। तो जैसे जैसे आपका इंटरडिपेंडेंस बढ़ता है कंट्रीज के बीच में, वैसे वैसे आपके जो लड़ाई झगड़े के मुद्दे होते हैं वो भी डिसॉल्व होने लगते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री में हमने देखा है कि जैसे जैसे इंटरडिपेंडेंस बढ़ा है, नेचर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप जैसे जैसे चेंज हुआ है, वैसे वैसे ये वॉर जैसा सिचुएशन भी डिसॉल्व हुआ है, ठीक है। ओके, to understand such type of change, it becomes essential to study history of culture, social organization and economic institutions. मैनेजमेंट स्टडीज क्या होते हैं भाई साहब, ठीक है। मैनेजमेंट स्टडीज इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ फैक्टर्स लाइक द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। भाई साहब आपके जो प्रोडक्शन के मीन्स हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है, द चेन ऑफ मार्केट्स एंड सेल्स मैनेजमेंट, ये सारी चीज ये जो है मैनेजमेंट के तहत स्टडी होती हैं। और ये सारी चीजें एकाएक डेवलप नहीं हुई हैं, ये चीजों को डेवलप होने में टाइम लगा है, और वो कैसे डेवलप हुई हैं इसको जानना भी हिस्ट्री का एक पार्ट है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो कि एक टाइम था, आज से अगर मैं 100 साल पहले की बात करूं और अगर आपसे बोलूं कि आप 100 साल पहले हैं और आपके बाजू में कोई इंसान आकर खड़ा होकर बोलता है कि भाई साहब तुम ना यहाँ पे खड़े रहकर किसी दुबई में रहते हुए इंसान से बात कर सकते हो,
तो आप क्या करेंगे, उस पर हंसेंगे, है ना। ये पॉसिबल ही नहीं था भाई साहब, लेकिन आज पॉसिबल है, ठीक है। दिस इज वेरी मच पॉसिबल टुडे। सो आप देख रहे हो कैसे चेंज हो रहा है सोसाइटी हमारा। इंक्लूड द स्टडी ऑफ, तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे चेंज हो गए। पहले भाई साहब हाथों से सिलाई होती थी, हाथों से बुनाई होती थी, कढ़ाई होती थी। आज की तारीख में भाई साहब मशीन्स आ गए हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज का एवोल्यूशन हुआ है। ह्यूमन रिसोर्सेज आर मोर नॉलेजेबल नाउ, मोर स्किल्ड नाउ, ठीक है। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुआ है, ठीक है। पहले भाई साहब एक्चुअली मैन्युअली जाकर काम करना पड़ता था, आज आप विद इन द क्लिक ऑफ अ बटन आप ये सब काम कर रहे हो, ठीक है। द चेन ऑफ मार्केट एंड सेल्स मैनेजमेंट, तो पूरा मार्केट, सेल्स मैनेजमेंट, ये सारी चीजें इवॉल्व हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। इस चेंज को समझना जरूरी है। अगर हम भाई साहब आज की तारीख में पुराने तरीके से बिजनेस करने जाएंगे तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। हर बिजनेस को जैसे ऑनलाइन मीडियम में लेकर जाना बहुत जरूरी है। आपके ऑनलाइन प्रेजेंस को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे फेमस हो सकते हैं, कैसे और ज्यादा लोग आपके पास आए आपका प्रोडक्ट्स लेने के लिए, ये सब तौर तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे, ठीक है। ओके, टू अंडरस्टैंड दीज फैक्टर्स इट इज नेसेसरी टू हैव द नॉलेज ऑफ द सिमिलर फंक्शनल सिस्टम्स ऑफ द पास्ट, ठीक है। तो पास्ट में हमने देखा है कि कैसे मार्केटिंग हुई है, कैसे सेल्स हुए हैं, कैसे प्रोडक्शंस हुए हैं, ठीक है, और कैसे किन कंपनीज ने बेनिफिट उठाया है, उन कंपनीज ने क्या क्या किया रहेगा, इसकी स्टडी भी तो हिस्ट्री की स्टडी हो गई, ठीक है। सो दीज आर बेस्ट प्रैक्टिसेस व्हिच आर एक्चुअली अडॉप्टेड फ्रॉम देम। For healthy management, it is essential to understand the psychological character of people working at various levels in the chain of production and marketing. अलग अलग लोग भाई साहब अलग अलग तरीके से सोचते हैं। जैसे एक कंपनी है, एक कंपनी जो जूता बना रही है, लेट्स से, उस कंपनी में एक एचआर डिपार्टमेंट होगा जो क्या करेगा, लोगों को हायर करेगा, लोगों को काम पे लाएगा, है ना, लोगों के इंटरव्यूज लेगा। उसमें भाई साहब एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा जो भाई साहब हिसाब किताब रखेगा, ठीक है। उसमें भाई साहब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा जो लोग एक्चुअली जूता बनाने में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। सबकी सोच अलग अलग होगी, सब जब घर से निकलते होंगे अलग तरीके से सोच कर निकलते होंगे। जो फाइनेंस में होगा वो सोच रहा होगा कि भाई साहब आज ये किस्सा निपटा लूँ, ये सारा हिसाब किताब कर लूँ। जो प्रोडक्शन में होगा वो सोचेगा कि भाई साहब आज 50 नहीं 75 जूते बना लेंगे। तो हर एक का भाई साहब साइकोलॉजिकल जो सेटअप है वो अलग अलग है, ठीक है। Although they are all working for the same company, but everyone has a different psychological character as per the work that they have been given. And in terms of history, we understand this psychological character. We make an attempt to understand this psychology. It is important to study the history of these institutions so that in present the management at various levels becomes easier. ठीक है। Arts में भाई साहब क्या है? It is important to understand the development of various art forms and their foundations in the form of intellectual, emotional, cultural traditions, ठीक है। सो जितने भी आर्ट फॉर्म्स हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस आर्ट फॉर्म्स। आर्ट में भाई साहब देखो, एक टाइम पे कथकली होती थी, आज टाइम तो पता नहीं ब्रेक डांस को क्या हो रहा है भाई साहब, ठीक है। सो आप देखोगे अलग अलग आर्ट फॉर्म्स इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। ये आर्ट फॉर्म कहाँ से आया है, कैसे विकसित हुआ है, क्या कल्चर इसके साथ जुड़ा है, ठीक है। जैसे आप अगर मुंबई में जाएंगे तो ज़्यादा करके आपको हेरिटेज बिल्डिंग्स मिलेंगे जो ब्रिटिश के टाइम पे कंस्ट्रक्ट हुए थे, तो वो एक पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इंडियन आर्ट फॉर्म में आपको अलग अलग मंदिरों का निर्माण दिखेगा, अलग अलग आपको स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। जैसे शिवाजी महाराज के टाइम पे जो फोर्ट्स थे उनका डिज़ाइन आपको अलग दिखेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखती हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस आर्ट फॉर्म्स एंड देयर फाउंडेशन इन द फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, कल्चरल ट्रेडिशंस। तो इंटेलिजेंस, इमोशन, कल्चर, ये सारे आपके आर्ट फॉर्म से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ कल्चरल हिस्ट्री वी कैन अंडरस्टैंड द की टू द एक्सप्रेशन इन एनी आर्ट फॉर्म, ठीक है। तो जो आपका किसी भी आर्ट फॉर्म में जो एक्सप्रेशन होता है, जैसे समझ लो किसी पेंटिंग में आप देख रहे हो एक कलर बहुत ज़्यादा यूज हुआ है, या एक कलर पैटर्न बहुत ज़्यादा यूज हुआ है, या एक स्केच पैटर्न यूज हुआ है, ठीक है, वो उसका डिस्टिंक्टिव फीचर बन जाता है, ठीक है। विद द हेल्प, देखिए राजस्थानी फॉर्म ऑफ आर्ट एक फॉर्म है, ठीक है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट एक फॉर्म ऑफ आर्ट है, ये अलग अलग आर्ट फॉर्म्स हैं, ठीक है। द की टू द एक्सप्रेशन इन एनी आर्ट फॉर्म्स, इमोशनल टेम्परमेंट ऑफ द आर्टिस्ट, ठीक है, एंड द डेवलपमेंट हिस्ट्री इन रिस्पेक्टिव आर्ट फॉर्म। ह्यूमैनिटीज क्या होती है भाई साहब? ह्यूमैनिटीज मतलब आर्ट्स की स्टडी होती है, ठीक है। इसमें आपका हिस्ट्री भी आता है, हिस्ट्री तो हम वाकिफ हो गए। आर्कियोलॉजी क्या होता है? पुरातत्व, ठीक है। पुरातत्व मतलब जो पुरातन वस्तुएं हमको मिली हैं उनकी स्टडी, ठीक है। फिर क्या है? सोशियोलॉजी, हमारा जो समाज, हाँ भाई साहब वो जब चलेगा तब चलेगा, तो तेरे को देखने से वो जल्दी नहीं चलेगा। सोशियोलॉजी क्या होता है भाई साहब? हमारा सोशल सेटअप, ठीक है। सोशियोलॉजी इज बेसिकली हमारा सोशल सेटअप। एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सब आपके ह्यूमैनिटीज में आते हैं।
ऑल दीज आर बेसिकली पार्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटी स्टडीज, ठीक है, और इन सब में हिस्ट्री का कॉन्ट्रीब्यूशन है। ऑल ह्यूमैनिटीज आर सपोज टू हैव देयर ओरिजिन इन फिलोसफी, सबका भाई साहब फिलोसफी में है। वेरियस डिसिप्लिन्स हैव थियोरेटिकल फाउंडेशंस बेस्ड ऑन फिलोसफिकल थियरीज, ओनली हिस्टोरिकल नॉलेज कैन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग दीज डेवलपमेंटल स्टेजेस। तो हमारे समाज में जो चेंजेस आए हैं, हमारे थॉट प्रोसेस में जो चेंजेस आए हैं, ये सारा का सारा हिस्ट्री से ताल्लुक रखता है, ठीक है। डैश इज ऑल्सो नोन एज पब्लिक हिस्ट्री, अप्लाइड हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री। The Srishti Institute of Art, Design and Technology at Dash in India has an independent department named Center for Public History, Bangalore, ठीक है, ओके। बोर्ड का क्वेश्चन है 2020 का, देखो, Dash is considered as the mother of science and all other subjects, ठीक है। So this will be basically what? Philosophy, ठीक है, philosophy सबसे जुड़ी हुई है। Explain the statement with reason. The method of history useful in the research of many subjects, ठीक है। तो हिस्ट्री का मेथड जो है यूजफुल है, कैसे? आप भाई साहब जो आंसर लिखेंगे उसमें क्या क्या कीवर्ड्स होने चाहिए। देखो, ये कीवर्ड्स नहीं रहेंगे ना तो आप कितना भी लंबा आंसर लिख लो उसमें मार्क्स नहीं मिलने वाले। क्या क्या है भाई साहब? स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, ठीक है, पॉलिटिक्स, सोशल एंड रिलीजियस स्ट्रक्चर ऑफ अ कम्युनिटी, फिलोसफी, टेक्नोलॉजी, साइंस, जिस सब में आपका हिस्ट्री का प्रभाव है वो बहुत जरूरी है, ये सारी चीजों को मेंशन करना। ये 2020 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। इसमें जो आप पॉइंट्स लिखेंगे उन पॉइंट्स में ये कीवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स इज बेसिकली कनेक्टेड टू हिस्ट्री, ठीक है। तो स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है, जो हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं उनका स्टडी, सोशल एंड रिलीजियस स्ट्रक्चर है उनका स्टडी, दिस इज ऑल इन्वॉल्व इन हिस्ट्री, ओके। 2022 का क्वेश्चन है और जुलाई 2023 में रिपीट भी हुआ है, 2 साल ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2 मार्क्स का है। इट इज एसेंशियल टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्यों ये जरूरी है? देखो, तो आप अपना एक आंसर लिखेंगे अपने वर्ड्स में, लेकिन जो कीवर्ड्स आपको यूज करने हैं टू अंडरस्टैंड द चेंजेस एंड देयर कॉजेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ठीक है। टेक्नोलॉजी ने किस चीजों को आपको छुआ है, क्या क्या चीजें ऐसी हैं टेक्नोलॉजी जो आपके जीवन में रेवोल्यूशन ला चुकी हैं। तो एक तो भाई साहब हो गया एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, हमने सबसे पहले फूड क्राइसिस को डिसॉल्व किया है, ठीक है। देन कमोडिटी प्रोडक्शन, मैसिव तरीके से कमोडिटी का प्रोडक्शन करना, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ मैकेनाइजेशन एंड द म्यूचुअल डिपेंडेंस बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो जो म्यूचुअल डिपेंडेंस है साइंस और टेक्नोलॉजी में उसको भी हम समझते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन अप्लाइड हिस्ट्री, 2023 का क्वेश्चन है भाई साहब। की पॉइंट्स ऑल्सो नोन एज पब्लिक हिस्ट्री, ठीक है, कंसर्न्ड विद एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री। तो अप्लाइड हिस्ट्री का दूसरा नाम क्या है? पब्लिक हिस्ट्री है, ठीक है। क्यों? बिकॉज इट इज एक्चुअली कनेक्टेड टू द बेनिफिट ऑफ पीपल। आप हिस्ट्री से क्या बेनिफिट पा रहे हैं? आपको कोई जॉब मिल रहा है, आपको कोई पैसा मिल सकता है क्या, इसकी कोई संभावना है, ठीक है, इन द कंटेम्प्रेरी एंड फ्यूचर टाइम्स। हेल्प्स टू फाइंड सॉल्यूशंस टू कंटेम्प्रेरी सोशल इश्यूज एंड इनकॉर्पोरेटिंग देम इन द सोशल प्लानिंग। तो जो कंटेम्प्रेरी सोशल इश्यूज हैं उनका सोल्यूशन निकालना और सोशल प्लानिंग में उसको डालना। gives opportunities not only to the technical experts but also to the common people, enabling them to participate in conservation and preservation projects। तो ये भाई साहब इनको enable करते हैं हम, ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। अप्लाइड हिस्ट्री एंड आप प्रेजेंट, तो आपका हो गया देखो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। द विजिबल एंड इनविजिबल रेलिक्स ऑफ द पास्ट एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट। आप देखो इनविजिबल, आप बोल रहे कि मैं दाल चावल राइस जो भी है वो खा रहा हूं मैं, ठीक है, आप बोल रहे कि ये तो मेरा नॉर्मल है रोज का, ठीक है, ये खाना तो मैं रोज ही खाता हूं। अभी अगर मैं बोलूं ये आपकी हिस्ट्री से कनेक्टेड है, आप बोलेंगे ये कैसे है, ठीक है। तो इनविजिबल रेलिक, इनविजिबल रेलिक मतलब आपको डायरेक्टली कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है इसका, लेकिन ये आपके हिस्ट्री से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इनविजिबल रेलिक मतलब एक रिमेन्स है विच इज नॉट विजिबल टू यू, एकदम डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिल रहा है। जैसे ज्योमेट्री में आप कोई थ्योरम प्रूव करते हैं तो हेंस प्रूफ दिखाते हैं, वैसा हेंस प्रूफ का कोई कार्यक्रम यहाँ पे नहीं है। लेकिन आप जिस तरीके का खाना आज आप खा रहे हैं, जिस तरीके से उसको खा रहे हैं, ये सारा हिस्ट्री से कनेक्टेड है, ठीक है। सो दैट्स द रीजन वी कॉल इट एज इनविजिबल रेलिक। जो विजिबल है प्लस जो इनविजिबल है, दोनों भी आपके भाई साहब जो प्रेजेंट में है वो आपके पास्ट से जुड़ा है, ठीक है, ओके। द हिस्ट्री ऑफ आवर हेरिटेज लिंक्स अस विथ आवर ओरिजिन। Applied history is concerned with the preservation and conservation of our heritage and make it accessible to people। तो हमारा जो हेरिटेज है, हमारा जो पुरातत्व है, उससे अप्लाइड हिस्ट्री हमको कनेक्ट करवाता है and makes it available to people।
जैसे अगर आप न्यू मुंबई सॉरी अपना मुंबई में जाते हैं, आपको मुंबई सीएसटी का स्टेशन और उसके जितने आजू बाजू बिल्डिंग है, दोज आर नोन एज हेरिटेज स्ट्रक्चर्स। उन हेरिटेज स्ट्रक्चर्स में आप कोई भी तोड़म ताड़ी नहीं कर सकते, ठीक है। यू कैन नॉट बेसिकली रीडेवलप देम इनटू न्यू स्ट्रक्चर्स, दे आर देयर एंड दे विल रिमेन देयर। उनका आप मेंटेनेंस कर सकते हैं लेकिन तोड़म ताड़ी नहीं कर सकते, ठीक है। आपके ज़्यादा करके जो आपके ऑफिसेज हैं वो वहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। दीज आर हेरिटेज स्ट्रक्चर्स। सो अप्लाइड हिस्ट्री, तो ये आपका हेरिटेज है। हेरिटेज मैनेजमेंट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अभी इस हेरिटेज को मैनेज करने के लिए आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी। ताजमहल हमारे लिए एक हेरिटेज है, मुंबई छत्रपति महाराज शिवाजी स्टेशन जो है वो हमारे लिए एक हेरिटेज है। उसके आजू बाजू के जो बिल्डिंग्स हैं वो सब आपके हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। जैसे आपका एशियाटिक सोसाइटी जो है मुंबई में, वो भी आपका एक हेरिटेज स्ट्रक्चर है। अभी इन सब को मैनेज करना, ठीक है, ऑब्वियसली यू वुड नीड पीपल, ठीक है, यू नीड पीपल। और इसीलिए उन लोगों को आपको हायर करना पड़ेगा जिनको हिस्ट्री का नॉलेज हो, ठीक है। आप भाई साहब कोई पेंटिंग है उसको भी भाई साहब आपको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा प्रॉपर केमिकल्स वगैरह के साथ। आपने कोई भी गड़बड़ कर दिया तो वो पूरा पेंटिंग खराब हो जाएगा, जो लाखों का होगा, करोड़ों का होगा, ठीक है। ये सारे जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं या पेंटिंग्स हैं या आर्ट फॉर्म्स हैं या जो मंदिरों में नक्काशियां हैं या ये सारे जितने भी चित्र बित्र हैं, इन सब को प्रिजर्व करने के लिए आपको एक टीम की जरूरत पड़ेगी जो हिस्ट्री के चीजों में नॉलेजेबल हो, ठीक है। तो इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट। अप्लाइड हिस्ट्री इज डिस्क्राइबिंग as understanding of our present with the help of history and finding right direction for the benefit of our future, ठीक है। मैनेजमेंट, तो कल्चरल हेरिटेज भाई साहब आपके, इट इज द फॉर्म ऑफ ह्यूमन क्रिएशन। इट इज ऑफ टू टाइप्स, टैंजिबल कल्चरल हेरिटेज, टैंजिबल दैट कैन बी क्लियरली सीन टू एग्जिस्ट। जैसे कोई मंदिर हो गया, कोई मस्जिद हो गया जो पुरातत्व है, कोई महल हो गया, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया, जितने भी हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं ये आपके क्या हो जाएंगे, टैंजिबल। ये सब कुछ याद रहेगा ना मैडम, बढ़िया। टैंजिबल दैट कैन बी क्लियरली सीन टू एग्जिस्ट, जो भाई साहब आपको दिख रहा है एग्जिस्ट करते हुए, ठीक है। इनका प्रिजर्वेशन एक होता है। और दूसरा क्या है भाई साहब, जो इनटैंजिबल है, जैसे आपके बिल्डिंग्स, जो पुरातन बिल्डिंग्स हैं, एंशिएंट साइट्स, ठीक है, बहुत पुरातन साइट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, ठीक है, इनका प्रिजर्वेशन, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, आर्टिफैक्ट्स, जो आर्ट्स हैं, ये सारी चीजें जो हैं इनको प्रिजर्व करके रखना, ठीक है, यू वुड रिक्वायर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ नॉलेज, ठीक है। सो इट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज बेसिकली टैंजिबल एंड द अदर वन इज इनटैंजिबल। दूसरे को अपन क्या बोलेंगे, इनटैंजिबल। इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज में क्या जाएगा, देखो ये हम छू नहीं सकते हैं। जैसे आपका जो लैंग्वेज है, ठीक है, जो लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। जो बोली आप बोल रहे हैं, ट्रेडिशनल स्किल्स, ट्रेडिशनल स्किल्स क्या होते हैं, जो स्किल्स आप अक्वायर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आयुर्वेद एक ट्रेडिशनल स्किल है, ठीक है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, ठीक है। सोशल कस्टम्स एंड रिचुअल्स जो आपके सोसाइटी में ऑब्जर्व होते हैं, ये आपका इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज है। तो आपके दो टाइप ऑफ ह्यूमन क्रिएशंस हैं, एक टैंजिबल और दूसरा है भाई साहब आपका इनटैंजिबल, ठीक है। ओके, सो ह्यूमन क्रिएशन इट इज ऑफ टू टाइप्स। एक क्रिएशन होता है आपका टैंजिबल कल्चरल हेरिटेज, जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, और एक होता है इनटैंजिबल। दोनों भी हिस्ट्री के पार्ट हैं, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट्स मतलब पहले के ज़माने में जो लिखे गए चीज़ें हैं, तालपत्री वगैरह पे जो लिखा गया है, ठीक है, पत्तों पे लिखा गया है। स्कल्पचर्स, ठीक है, जो आपके भाई साहब मूर्तियाँ वगैरह होती हैं। पेंटिंग्स, आर्टिफैक्ट्स जो आर्ट की चीज़ें हैं। एंशिएंट साइट्स, ठीक है, जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पा, ये सब आपके एंशिएंट साइट्स हैं, ठीक है। बिल्डिंग्स, आपके जो पुरातन महल, मंदिर, मस्जिद जो भी हैं, ठीक है। और आपका एक होता है जो इनटैंजिबल है, इनको आप छू नहीं सकते लेकिन आप इनका प्रयोग करते हैं। जैसे आपका लैंग्वेज, जो लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं वो आज ही नहीं बना है, वो बहुत सदियों से बनता आया है, बोलचाल वाली भाषा है, और ये उभरता हुआ एक चीज है, ठीक है। ट्रेडिशनल स्किल्स, आपके जो ट्रेडिशनल स्किल्स हैं, जैसे ट्रेडिशनल स्किल्स मतलब क्या है, देखो जैसे कपड़े कैसे बुनते हैं, ये एक ट्रेडिशनल, आपके बहुत सारे प्रिंट्स होते हैं, ठीक है, जो ट्रेडिशनल होते हैं। स्टाइल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स मतलब जैसे एक्टिंग हो गया, डांसेस हो गए, वेरियस डांस फॉर्म्स, दीज आर ऑल परफॉर्मिंग एक्ट्स, ठीक है। फिर आपके सोशल कस्टम्स एंड रिचुअल्स, जो आपके सोशल कस्टम्स होते हैं, जो आपके सोसाइटी में जो कस्टम्स माने जाते हैं या जो रिचुअल्स है, ठीक है। और ट्रेडिशनल नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज मतलब जड़ी बूटियों का नॉलेज वगैरह, ये सब आपके हिस्ट्री के पार्ट हैं। ऑल दीज आर बेसिकली अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। द इंडियन ट्रेडिशंस डिक्लेयर्ड एज ओरल एंड इनटैंजिबल हेरिटेज। 2001 में कुटियाट्टम
दैट इज एक संस्कृत थिएटर है केरला, इसको भाई साहब ट्रेडिशनल हेरिटेज, परफॉर्मिंग आर्ट का एक ट्रेडिशनल हेरिटेज है। 2001 में इसको भाई साहब डिक्लेयर किया गया है ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज, 2001 में इसको डिक्लेयर किया गया। द ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चांटिंग, जो वेदों का पाठ होता है, इसको भी भाई साहब क्या डिक्लेयर किया गया 2003 में, इट इज ऑल्सो डिक्लेयर्ड एज एन ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज 2003 में। ठीक है, रामलीला जो होती है आपके नॉर्दर्न स्टेट्स में ये बहुत ज्यादा होता है, रामलीला बोलते हैं इसको। द ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस ऑफ रामायण इन नॉर्थ इंडिया, इसको भी भाई साहब एक ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज डिक्लेयर किया गया है 2005 में। ठीक है, दीज आर ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेजेस, मतलब ये चले आ रहे हैं, बहुत सालों से चले आ रहे हैं। ठीक है, ओके, सो दीज आर डिक्लेयर 2005 में डिक्लेयर किया। 2009 में रमन, देयर इज रिलीजियस फेस्टिवल एंड रिचुअल थिएटर ऑफ गाढ़वाल उत्तराखंड। ठीक है, देन कैलबेलिया फोक सॉन्ग्स एंड डांसेस ऑफ राजस्थान, ये 2010 में इसको, इन सबको भाई साहब ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज डिक्लेयर किया गया है, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है। छाऊ डांस, ठीक है, विच इज परफॉर्म्ड इन वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड उड़ीसा, दिस वाज डिक्लेयर्ड एज एन ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज इन द ईयर 2010। ठीक है, 2010 मुडिएट अ रिचुअल थिएटर ऑफ केरला, ठीक है, ये एक रिचुअल थिएटर है केरला का, और इसको भी भाई साहब क्या डिक्लेयर किया गया, ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज। ठीक है, बुद्धिस्ट चांटिंग ऑफ लद्दाख, ठीक है, रिसाइटेशन ऑफ सेक्रेड बुद्धिस्ट टेक्स्ट इन ट्रांस हिमालयन लद्दाख रीजन, जम्मू एंड कश्मीर, इसको भी भाई साहब एक इंटेंजिबल एंड ओरल हेरिटेज डिक्लेयर किया गया 2012 में। 2013 संकीर्तन, ये आपका रिचुअल सिंगिंग ड्रमिंग एंड डांसिंग ऑफ मणिपुर, इसको भी भाई साहब रिचुअल को आपका इंटेंजिबल हेरिटेज डिक्लेयर किया गया। सो ऑल दीज आर रिस्पेक्टिव ईयर्स ऑन विच these performing arts have been discovered or rather declared as intangible heritage। ठीक है, 2014 traditional craft of making utensils of brass and copper among the thanars of Punjab। ठीक है, योगा को भी भाई साहब एक intangible heritage डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, the practice of yoga। वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट्स, अभी देखो हम यहाँ पे किन की बात करेंगे, टैंजिबल हेरिटेज साइट्स की। ठीक है, अभी तक हम क्या डिस्कस कर रहे थे, इनटैंजिबल, नाउ वी आर डिस्कसिंग टैंजिबल, जिनको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, 1983 ये आपका आगरा फोर्ट है, जिसको भाई साहब वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में कोई भी रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, यू कैन नॉट डेवलप देम इनटू बिल्डिंग्स, दे कैन ओनली बी मेंटेन, इनकी मेंटेनेंस हो सकती है, लेकिन इनको रीडेवलप नहीं कर सकते अपन। ठीक है, ओके, अजंता केव्स, ठीक है, कोई गया है भाई साहब यहाँ पे, नहीं, ओके, वेलूर एलोरा केव्स, अजंता एंड एलोरा केव्स हैव बीन, ताजमहल जो आगरा में है। ठीक है, देन 1984 टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम, इनको भी भाई साहब डिक्लेयर किया गया है। 1986 चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, ठीक है, जितने भी आपके चर्चेस हैं, कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, उनको भी डिक्लेयर किया गया है। फतेहपुर सीकरी, ठीक है, 1986 ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हम्पी, एक टेम्पल है, वहां पे भी भाई साहब इसको डिक्लेयर किया गया है। खाजीराव टेम्पल्स, ठीक है, इनको भी डिक्लेयर किया गया है। 1987 घारापुरी एलिफेंटा केव्स, ठीक है, इनको भी डिक्लेयर किया गया है। बृहदास्वरा टेम्पल एट तंजावुर, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, ठीक है, इन सबको हेरिटेज साइट्स। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पड्डाकल, ठीक है, सांची स्तूप, हुमायूंस टॉम्ब दिल्ली, ठीक है, 1993 कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स दिल्ली। माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आपके माउंटेन रेलवेज है, जैसे अगर आप यहाँ पे जाते हैं, माथेरान में जाते हैं, तो वहां पे भी देखो वो गाड़ी चलती है, माउंटेन रेलवेज जिनको बोलते हैं, इनको भी हेरिटेज साइट, मतलब इनको तोड़कर आप नए रेलवेज नहीं बना सकते हैं, इनको हम टॉय ट्रेन भी बोलते हैं ज्यादा करके। ठीक है, मतलब इनमें ना आप दौड़ते दौड़ते भी चढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके, सो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, नीलगिरीज में जो माउंटेन रेलवेज है, द कालका शिमला रेलवे, इसमें भारी गाड़ियां नहीं जा सकती, ठीक है, हल्की गाड़ियां ही जा सकती हैं, ये सब रेलवे अभी भी चल रहे हैं तब के। ठीक है, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया, ठीक है, इसको भी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, इसको भी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। चंपानेर पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, छत्रपति, ये हमारा स्टेशन हो गया भाई साहब, मुंबई स्टेशन, इसको भी एक हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, 2004 में। रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स दिल्ली, जहां पे भाई साहब आपका 15 अगस्त को यहां से प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं। द जंतर मंतर जयपुर, ठीक है, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, रानी की बाव, द क्वींस टीपवेल एट पतन गुजरात, ठीक है, ये वेल देखा है किसी ने भाई साहब, बहुत साइंटिफिक स्ट्रक्चर है, ये बहुत नीचे तक वेल है इसका। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महावीरा, यह एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी हुआ करता था।
ठीक है, और नॉलेज सेंटर था, ठीक है, एट बिहार में था ये। कैपिटल कॉम्प्लेक्स एट चंडीगढ़, अहमदाबाद हिस्टोरिकल सिटी, ठीक है, ये सब आपके भाई साहब। अभी हम बात करें, ये तब तो आपके मैन मेड नेचुरल हेरिटेजेस है, मतलब ये इंसानों ने बनाया है। अभी कुछ हेरिटेज साइट्स ऐसे होते हैं जो नेचर ने ही बनाया है, नेचर से। तो गिव्स इंपॉर्टेंस विद थॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंक्लूड्स फौना, फ्लोरा, इकोलॉजी एंड जियोमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज एसेंशियल फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू प्रिजर्व आवर हेरिटेज। यूनेस्को बेसिकली यूएनओ का एक पार्ट है, ठीक है। तो यूनेस्को बेसिकली सारी चीजों को वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर करता है आफ्टर इफेक्टिव स्टडी, ठीक है। यूनेस्को अनाउंस्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एंड ट्रेडिशंस। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंक्लूड वेस्टर्न घाट्स। आपके जो ये वेस्टर्न घाट्स हैं, जैसे लोनावाला हो गया या माथेरान हो गया, जो पहाड़ आपको दिख रहे हैं, दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। आपको जो बारिश मिल रही है ये वेस्टर्न घाट्स की वजह से मिल रही है, ठीक है। ये जो पूरा तमाम आपको बारिश मिल रहा है ये पूरा वेस्टर्न घाट्स की वजह से, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। ये कास प्लाटू इन डिस्ट्रिक्ट सातारा इज अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। मतलब यहां पे आप कोई भी कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं कर सकते, ठीक है। Okay, then we have jurisdiction of the Archaeological Survey of India and India State Development of Archaeology works upon conservation and preservation of the cultural heritage. Intact, that is Indian National Trust for Art and Cultural Heritage, ये important है, इसमें questions आते हैं, is actively working in this field, ठीक है। वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट्स, तो आपका देखो एक है काजीरंगा नेशनल पार्क जो आपके राइनोस के लिए फेमस है, केवलदेव नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुंदरबंस नेशनल पार्क जो वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स ये आपका उत्तराखंड में है। 2005 नेशनल पार्क्स, 2012 वेस्टर्न घाट्स, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया, ठीक है। ये सब आपके नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं। यहाँ पे हंटिंग, पोचिंग, रिकंस्ट्रक्शन, आपका क्या कहते हैं, माइनिंग, ये सारे डिसअलाउड है, ठीक है। ये सब अलाउड ही नहीं है, ठीक है। ये नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं। अभी आपके मिक्स्ड, जैसे 2016, ठीक है, नेशनल पार्क, ये काजीरंगा नेशनल पार्क है, इसको भी आपके हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। द ग्लोबल एजेंसी डैश हैज अनाउंस्ड सम डायरेक्टिव्स एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोमोटिंग द कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। कौन हो जाएगा ये? यूनेस्को। इट विल बी बेसिकली यूनेस्को, ओके। आइडेंटिफाई एंड राइट द रॉन्ग पेयर, मुडीएट, ठीक है। ये देखिए आपका भाई साहब, इसीलिए सारे डांस फॉर्म्स जो आपके परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं एंड विच आर रैदर इंटेंजिबल, ठीक है, ये सारे आपके भाई साहब इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैलबेलिया ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस ऑफ रामायण इन उत्तर प्रदेश। एक्चुअली ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस ऑफ रामायण उत्तर प्रदेश क्या है? रामलीला बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो कैलबेलिया इज द रॉन्ग पेयर, ठीक है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर, वेरुल केव्स, योगा किस टाइप का हेरिटेज है भाई साहब? इंटेंजिबल हेरिटेज है, ठीक है। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, ये क्या है भाई साहब? आपका नेचुरल हेरिटेज साइट है। द जंतर मंतर इंटेंजिबल हेरिटेज, ये रॉन्ग है, इट्स अ टेंजिबल हेरिटेज है, ठीक है। जंतर मंतर एक महल है, ठीक है, तो ये इंटेंजिबल हेरिटेज नहीं है। वेरुल केव्स कल्चरल हेरिटेज साइट करेक्ट है, ठीक है। सो जंतर मंतर इंटेंजिबल हेरिटेज, रॉन्ग पेयरिंग हो गई, टेंजिबल हेरिटेज होगा। टेंजिबल मतलब जिसको आप छू सके, महसूस कर सके, देख सके। इनटेंजिबल मतलब आपके आर्ट फॉर्म्स हो गए जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ये फॉर्म्स है, ठीक है, ओके। रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स कहां पे लोकेटेड है भाई साहब? दिल्ली में। जंतर मंतर कहां पे लोकेटेड है? जयपुर में। बोध गया, ऑब्वियसली गया डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ठीक है। हेलो, ओके। सो आपका देखिए ये सब क्वेश्चंस हो गए प्रीवियसली आज बोर्ड क्वेश्चन 2020। कल्चरल हेरिटेज में टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल में क्या क्या आ जाएगा बोलो? मैन्युस्क्रिप्ट्स, बिल्डिंग्स और पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स, आर्टिफैक्ट्स, ठीक है, ये सब आपके टेंजिबल में आ जाएंगे। इंटेंजिबल में लैंग्वेज, ट्रेडिशनल स्किल्स, ट्रेडिशनल नॉलेज और परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है, ये सब आपके आ जाएंगे इंटेंजिबल में, ठीक है। सो एंशिएंट साइट्स, आर्टिफैक्ट्स, बिल्डिंग्स, स्कल्पचर्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, पेंटिंग्स, ये आपके आ गए टेंजिबल में। इंटेंजिबल में ट्रेडिशनल नॉलेज, ओरल ट्रेडिशंस एंड देयर लैंग्वेज, जो जैसे हनुमान चालीसा, ये भी भाई साहब आपका एक क्या है? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, ये चला आ रहा है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग शायद अनपढ़ गवार है लेकिन को हनुमान चालीसा मालूम है क्योंकि सुनते हुए आ रहे हैं, है ना।
ओके, ओरल ट्रेडिशंस एंड देयर लैंग्वेज, जैसे आपके शिवाजी महाराज के पवाड़ा जो होते हैं वो भी भाई साहब आपके एक कल्चरल हेरिटेज है, ओरल ट्रेडिशन है। सोशल कस्टम्स एंड रिचुअल्स ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स, ठीक है, जैसे अभी रक्षाबंधन आने वाला है, एक सोशल कस्टम है ये, ठीक है। सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल, स्टाइल्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, आपने देखा इतने सारे परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, इनके स्टाइल्स जो हैं दे आर ऑल इंटेंजिबल। कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप्स, वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न घाट भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, तो लेट्स से आपका ये क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट वेस्टर्न घाट, ओके। ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई साहब, वन मतलब केवलादेव नेशनल पार्क, ओके, सुंदरबंस नेशनल पार्क 2, ठीक है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड फोर्ट, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, ओके, ठीक है भाई साहब। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद रीजंस, द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इज अनाउंस्ड बाय यूनेस्को। यूनेस्को आपका यूएनओ का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो हेरिटेज बेनिफिट्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, तो इस हेरिटेज का क्या बेनिफिट होगा ये भी उन लोग बताते हैं। अगर आप इस हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखेंगे तो काफी सारे टूरिस्ट आएंगे और आपका ही नाम होगा, ठीक है। कंजर्व सर्टेन टाइप्स ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज वर्ज ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, अगर आप इसको प्रिजर्व करके नहीं रखेंगे तो ये लुप्त हो जाएगा, ठीक है। प्रोमोटिंग द कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, ये सब यूनेस्को करता है, ठीक है। व्हाट ऑब्जेक्टिव्स कैन बी फुलफिल्ड थ्रू द हेरिटेज प्रोजेक्ट्स, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज साइट कैन बी हैंडल्ड विदाउट एनी चेंज, सर्वे लोकल सोशल स्ट्रक्चर एंड साइकोलॉजी ऑफ पीपल एंड देयर एक्सपेक्टेशंस, प्रॉपर प्रिकॉशंस लेना, पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल, ये सब आपके हेरिटेज प्रोडक्ट से मिलता है हमको, ठीक है। ये आपके 2019 के क्वेश्चन है, देखो, हाउ कैन वी कोरिलेट अप्लाइड हिस्ट्री विद आवर प्रेजेंट, अप्लाइड हिस्ट्री को हम प्रेजेंट के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। कंसर्न विद एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल इन द कंटेम्प्रेरी एंड फ्यूचर टाइम्स, मतलब आपके कंटेम्प्रेरी अभी के और आगे के समय के लिए ये जोड़ता है हमको, क्योंकि ये हिस्ट्री के बेनिफिट्स देता है हमको, ठीक है। वी इंटेंड टू नो मोर अबाउट द हिस्ट्री ऑफ रेलिक्स एज दे रिप्रेजेंट द क्रिएटिव थॉट्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ आवर एंसेस्टर्स, आवर ओरिजिन इज लिंक्ड विद द हिस्ट्री, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व एंड कंजर्व बोथ द विजिबल एंड इनविजिबल रेलिक्स ऑफ आवर बेनिफिट। कंप्लीट द फॉलोइंग, आपका भाई साहब टैंजिबल कल्चरल हेरिटेज क्या हो गया, एंशिएंट साइट्स, आर्टिफैक्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, स्कल्पचर्स, ये सब आपके टैंजिबल हो गए। अदर टैंजिबल कल्चरल हेरिटेज क्या हो जाएंगे, बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एक्सेट्रा, ठीक है। अफिलिएटेड, अभी देखो क्या क्या जॉब्स आपको मिल सकते हैं अगर आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो व्हाट आर द जॉब्स एसोसिएटेड विद इट, तो इसको हम बोलेंगे अफिलिएटेड प्रोफेशनल फील्ड्स ऑफ हिस्ट्री, म्यूजियम्स एंड आर्काइव्स, ठीक है। प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल साइट्स, हिस्टोरिकल साइट्स का प्रिजर्वेशन करना, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, एंटरटेनमेंट एंड मास मीडिया, ये सारी चीजें जो है भाई साहब आपके प्रिजर्वेशन के लिए जरूरी है। आर्काइव्स, ठीक है, प्रिजर्व एंड स्टोर ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ओल्ड फिल्म्स, ये सारे का भाई साहब यहाँ पे इनको हम बोलते हैं आर्काइव्स, ठीक है। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया इज इन न्यू दिल्ली, ठीक है, ये आपका न्यू दिल्ली में है। आर्काइव्स विद अ डिस्टिंक्ट पर्पस, नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया, ये आपका पुणे में लोकेटेड है, जो बहुत पुरानी मूवीज बनी है वो भी यहाँ पे स्टोर होती है। मुझे याद रहेगा काव्या, तुमने एक बार भी ना नोट्स नहीं बनाया है। Established in 1964 as the media unit of the Ministry of Information and Broadcasting of the Indian government, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, टू सर्च एंड ऑब्टेन रेयर इंडियन फिल्म्स, जो पहले के फिल्म्स हैं उनको सर्च करना, ठीक है। एंड टू प्रिजर्व द हेरिटेज फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर जनरेशंस, फ्यूचर जनरेशन के बेनिफिट के लिए भाई साहब, ठीक है। टू कैटेगराइज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फिल्म्स, कैसे चेंजेस हुए, टू क्रिएट डॉक्यूमेंटेशन एंड कैटलॉग्स एंड कैरी आउट रिसर्च इन द फील्ड, ठीक है। टू एस्टैब्लिश अ सेंटर ऑफ डिसमिनेशन ऑफ फिल्म्स कल्चर, अभी देखो इंडियन म्यूजियम कोलकाता है, ये देखो, ठीक है, फाउंडेड बाय एशियाटिक सोसाइटी, फाउंडर एंड द फर्स्ट क्यूरेटर तो कौन थे भाई साहब, नाथनियल वैलिक, जिन्होंने इसको क्रिएट किया था। डिपार्टमेंट्स इसमें क्या क्या है, आर्ट्स का डिपार्टमेंट है, आर्कियोलॉजी का डिपार्टमेंट है एंड एंथ्रोपोलॉजी का है। एफिलिएटेड डिपार्टमेंट्स, कंजर्वेशन, पब्लिकेशन, फोटोग्राफी, एग्जीबिशन प्रेजेंटेशन, मॉडल मेकिंग, ट्रेनिंग, लाइब्रेरी, सिक्योरिटी, ठीक है। नेम द 3 मेन डिपार्टमेंट्स ऑफ इंडियन म्यूजियम, क्या क्या था, आर्ट्स, अब भी पढ़ा भाई साहब, आर्कियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। गिव द फंक्शन ऑफ आर्काइव्स टू प्रेजेंट एंड स्टोर ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, आर्काइव्स मतलब होता है जहां पे ओल्ड डॉक्यूमेंट स्टोर होते हैं, ठीक है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ओल्ड फिल्म्स एक्सेट्रा, ठीक है। प्रीवियसली 8 बोस्ट क्वेश्चन देखिए भाई साहब, आपका 2019 और 2020 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया इज इन दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, इट इज इन दिल्ली। The earliest museum in the world was discovered in the excavations
एट द सिटी ऑफ दिल्ली यू आर हरप्पा और कोलकाता, तो इट इज हरप्पा। मोहनजोदारो और उर सॉरी, ठीक है, ओके। सजेस्ट एटलीस्ट 6 सॉल्यूशंस फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। क्या क्या है भाई साहब? डेवलप द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टुवर्ड्स वेरियस आर्ट फॉर्म्स ट्रेडिशंस created by our ancestors. While visiting any historical site, one should abide by the rules and regulation. उसको गंदा ना करें, ठीक है, उसका पर्यावरण खराब ना करें। Collect and preserve oral sources, ठीक है, reprint written sources for research in future. With the help of new technology, recover certain photographs or audio video to organize heritage walks, ठीक है। तो this was basically the entire chapter, ठीक है। I will send you the notes, make sure you make notes, ठीक है। ये आपका important है, इस पे क्वेश्चन बनता दिख रहा है मुझे इस साल, ठीक है।